हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट चैनल साउंडिंग टेक्निक फॉर चैनल मेजरमेंट। जो इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारा होता है उसमें जो चैनल होती है उसका पैरामीटर्स हम कैसे मेजर करेंगे। वी हैव थ्री टेक्निक्स। Among them, two are based on a time domain and one is based on a frequency domain. तो ये हमने अच्छी तरह से लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग थ्रू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीपाथ चैनल्स। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीपाथ चैनल मतलब मल्टीपाथ चैनल का तो आप लोगों को मतलब मालूम ही है कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपाथ चैनल। तो मल्टीपाथ चैनल क्या चीज़ है? तो मल्टीपाथ चैनल यानी कि हमारा जो सिग्नल जब ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रैवलिंग करता है तो कोई एक पाथ फॉलो नहीं करता है। इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन और सब जगह से रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन होने के बाद वो रिसीवर तक पहुंचता है। तो ये मल्टीपल जो चैनल्स रहती है उसमें कई बार उसको फीडिंग, यू कैन से दैट अ टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन है ना, उसका फेस करना पड़ता है। तो ये चैनल अकॉर्डिंग टू फीडिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो हम देख रहे हैं अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीपाथ चैनल। तो सबसे पहला है ओके, depending on the relation between the signal parameters and channel parameters. Which are the signal parameters? They are bandwidth, symbol period, okay, and channel parameters like delay spread and Doppler spread. According to this parameter, we can divide our multipath channel into further categories. Okay, और उसको हम बोलेंगे feeding. Okay, तो ये क्या क्या categories है? So, based on a delay spread, the types of small scale feeding are flat feeding and frequency selective feeding. Okay, ये classification दिया है according to delay spread. Okay, next is second classification which is based on a Doppler spread. Okay, and that is fast feeding and small feeding, स्लो फीडिंग। ओके, फास्ट फीडिंग एंड स्लो फीडिंग। आज के लेक्चर में वन बाय वन हर एक फीडिंग का हम मतलब समझने वाले हैं, उसको कैसे कैरेक्टराइज करेंगे वो हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फीडिंग मतलब क्या मतलब है, कैसे उनको डिवाइड किया गया है। तो स्मॉल स्केल फीडिंग बेस्ड ऑन अ मल्टीपाथ टाइम डिले स्प्रेड। टाइम डिले स्प्रेड के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, flat feeding and frequency selective feeding. Okay, flat feeding occurs when bandwidth of the signal is much smaller than the coherence bandwidth. इसका मतलब है कि सिग्मा टाउ आरएमएस डिले स्प्रेड, जो सिग्मा टाउ जिसे हम बोलते हैं, इज मच स्मॉलर देन द सिंबल पीरियड। ओके, whenever delay spread is much smaller than the symbol period, then it is called flat feeding. अब ये सिग्मा टाउ है is only a function of environment. It has nothing to do with the signal. Okay, the other part based on a multipath time delay spreading is frequency selective feeding, जो दूसरा टाइप है वो। Okay, this is totally complement from the first, and in this case BS जो bandwidth of the signal है which is much greater than the BC. It is totally reverse than the flat feeding. Frequency selective feeding is totally complement than flat feeding. Okay. One more thing you should note about the frequency selective feeding is, in this case ISI, that is inter-symbol interference, occurs. Okay, and also in frequency selective feeding delay spread is much greater than the symbol period, while it was very much small than the in flat feeding. और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ISI इंटर सिंबल इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग को, ये आपको ध्यान रखना है।
Also, channel tend to become more frequency selective. The other feature of frequency selective channel is that the spectral characteristic of transmitted signal is not preserved. ओके वो कहीं पे भी आप स्टोर नहीं कर सकते. ओके जो सिग्नल आप ट्रांसमिट करना चाहते हो विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर. But a good part of the frequency selective feeding is, though BS is greater than BC, you can remove multipath component like in a UWB. मल्टीपाथ कंपोनेंट को आप रिमूव कर सकते हैं. मतलब कि आप पर्टिकुलर किसी एक वेव पे या पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में आपको कॉन्सेंट्रेट करना है तो आप कर सकते हो. इट इज सेम एज अ UWB. UWB क्या है? इट्स अल्ट्रा वाइड बैंड कम्युनिकेशन. तो you can say that UWB अल्ट्रा वाइड बैंड कम्युनिकेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग का ही एक पार्ट है, ऐसा आप बोल सकते हो. ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अ टाइम डिले स्प्रेड. ओके, आवर सेकंड क्लासिफिकेशन इज इट्स बेस्ड ऑन अ डॉपलर स्प्रेड इज फास्ट फेडिंग एंड स्मॉल फेडिंग, स्लो फेडिंग. Okay, in a fast fading high Doppler spread is there. Okay, Doppler spread की इफेक्ट फास्ट फेडिंग में ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू स्लो फेडिंग. स्लो फेडिंग में डॉपलर स्प्रेड बहुत कम रहता है. ओके, ये डॉपलर स्प्रेड क्या है वो आप जानते हो, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट की वजह से आपका जो सिग्नल है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है. ओके, थोड़ा स्प्रेड हो जाता है. दैट इज कॉल्ड डॉपलर स्प्रेडिंग. ओके, कोहेरेंस टाइम. कोहेरेंस टाइम इज वेरी स्मॉल. कोहेरेंस टाइम का मतलब है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए सिस्टम अगर एज अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के जैसे वर्क करती है वो टाइम को हम बोलेंगे कोहेरेंस टाइम. ओके, तो इन फास्ट फेडिंग कोहेरेंस टाइम इज वेरी लेस देन सिंबल पीरियड. ओके, while in a slow fading coherence time is much greater than the symbol period. Okay, third, basically you can say that difference is that channel variation is faster than the baseband signal variation, and in slow fading channel variation is small. The variation in the channel is very small as compared to baseband signal variation. ओके, समझ में आ गया? तो ये मेन 3 डिफरेंस है फास्ट फेडिंग और स्लो फेडिंग. जनरली सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे स्मॉल स्केल फेडिंग बेस्ड ऑन अ टाइम डिले स्प्रेड. वन बाय वन चारों टाइप्स को आज हम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट्स विद द फ्लैट फीडिंग. फ्लैट फीडिंग क्या है? फ्लैट फीडिंग अकर्स due to fluctuation in gain of the multipath channel which leads to the change in amplitude of received signal with time. ओके, ये क्या करता है कि गेन में जो फ्लक्चुएशन आता है फ्लैट फीडिंग क्यों मतलब जनरेट होता है. ओके, तो एम्पलीट्यूड रिसीव्ड सिग्नल जो हमारा होता है उसमें जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आता है उसकी वजह से गेन में फ्लक्चुएशन आएगा, और ये गेन में जो फ्लक्चुएशन आता है उसकी वजह से हमें फ्लैट फीडिंग मिलता है. ओके, और ये सब वेरी होता है अकॉर्डिंग टू टाइम. मतलब कि सबसे पहला पैरामीटर होगा हमारा चेंज ऑफ टाइम. टाइम की वजह से क्या चेंज होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ रिसीव्ड सिग्नल, और एम्पलीट्यूड ऑफ रिसीव्ड सिग्नल की वजह से क्या होगा? गेन हमारा मल्टीपाथ चैनल का चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से हमें फ्लैट फीडिंग मिलेगा. क्लियर? ओके, फ्लैट फीडिंग occurs when the symbol period of the transmit signal is much larger than the delay spread of the channel. ये हमने आगे देख लिया है. ओके, सिंबल पीरियड जो हमारा होता है ट्रांसमिटेड सिग्नल का, अगर वो बहुत ज़्यादा है डिले स्प्रेड से, ओके, वो कंडीशन में भी ये फ्लैट फीडिंग जनरेट होता है. ठीक है, एक चीज़ श्योरली आपको बोल सकते हैं कि अगर मल्टीपाथ कंपोनेंट रिड्यूस होंगे तो ये इफेक्ट की स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप हाईली डायरेक्शनल ट्रांसमीटर और रिसीवर का यूज़ करोगे तो मोस्ट ऑफ द मल्टीपाथ कंपोनेंट वैनिश हो जाएंगे. ओके, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे.
और ऐसे केसेस में डिले स्प्रेड जो हमारा है वो डाउन हो जाएगा। ओके, समझ में आया? Bandwidth of the applied signal is very narrow, okay, as compared to coherence bandwidth. सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो बहुत ही नैरो होगी एज कंपेयर टू कोहेरेंस बैंडविड्थ। कोहेरेंस टाइम है उसके जैसा ही पैरामीटर है कोहेरेंस बैंडविड्थ। तो दोनों का अगर कंपैरिजन करने जाओगे तो बैंडविड्थ ऑफ द अप्लाइड सिग्नल जो है हमें बहुत ही नैरो मिलता है। ओके, फ्लैट फेडिंग में कॉज डीप फेड्स। ओके, ये एक आप बोल सकते हो एक इफेक्ट है फ्लैट फेडिंग की, कि जिसकी वजह से क्या होता है आपको सिग्नल में डीप फेड्स मिलेंगे विच कैन बी लिमिटेड बाय वेरियस टेक्निक्स। उसको आप अलग अलग टेक्निक अप्लाई करके रिमूव कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ओके, रिमूव तो नहीं कर सकते कम्प्लीटली बट यू कैन कंट्रोल इट। वन वे इज टू इंक्रीज द ट्रांसमीटर पावर। एक तरीका है कि आप अगर ट्रांसमीटर पावर इंक्रीज करोगे तो आपका कंट्रोल में आएगा, बट इट इज़ वेरी पुअर सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आप ट्रांसमीटर पावर इंक्रीज करोगे तो उसके साथ साथ आपको नॉइज़ और ISR इंटरफेरेंस जो होता है वो भी बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारा जो एक वे हमने सॉल्यूशन सोचा है कि वे ट्रांसमीटर पावर इंक्रीज करके आप डीप फेड्स को कंट्रोल करोगे, तो दैट यू कांट डू इट। ओके, सो नेक्स्ट बहुत सारे टेक्निक्स है लाइक टाइम डाइवर्सिटी, एंटेना डाइवर्सिटी, अलग अलग टेक्निक्स है जिससे कि आप डीप फेड्स को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अगर फ्लैट फेडिंग के बारे में देखा जाए तो हियर इट्स अ स्मॉल ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्लैट फेडिंग। एज्यूम दैट एस ऑफ टी इज द सिग्नल बीइंग सेंट, मतलब ट्रांसमिटेड सिग्नल है हमारा, दैट इज एस ऑफ टी, और आर ऑफ टी इज द रिसीव्ड सिग्नल। ओके, जो एस ऑफ टी इज पासिंग थ्रू द frequency flat feeding channel that is described by h of t tau. Okay, और वॉट एवर सिग्नल वी आर रिसीव्ड इज आर ऑफ टी। तो मतलब कि आपको एस ऑफ टी को रिप्रेजेंट करना है टाइम डोमेन में, तो इट लुक्स लाइक अ पल्स। नाउ फॉर द फेडिंग हमारे पास मल्टीपल पल्सेस नहीं है। ओके, सो हियर इट्स अ स्मॉल channel characterization you can say that of flat feeding channel. ओके, ये फ्लैट फीडिंग चैनल है। अगर एग्जाम्पल वाइज देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे 0 to TS ऐसे सिग्नल पीरियड है, एक ऐसा सिग्नल ट्रांसमिट करता हूँ h of t, तो सिंपली r of t मुझे क्या मिलेगा, दोनों का जनरली मल्टीप्लिकेशन मिलता है। ओके, एडिशन यू कैन से दैट। ओके, तो जिसका आर ऑफ टी मुझे ऐसा मिलेगा। ओके, इट्स जनरेटेड बाय फ्लैट फीडिंग चैनल। तो क्लियर अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैट फीडिंग? ओके, ये तो आप जानते हो कि फ्लैट फीडिंग कब बनता है, वेन एवर बी एस इज मच स्मॉलर देन बी सी, वेन एवर सिग्नल बैंडविड्थ इज मच स्मॉलर देन द कोहेरेंस बैंडविड्थ, एट दैट टाइम फ्लैट फीडिंग इज अकर्ड। एंड दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, नॉट ओनली वन, इट्स नॉट आइदर कंडीशन। ओके, एंड सेकंड वन इज टीएस इज मच स्मॉलर, मच हायर, ग्रेटर देन द डिले स्प्रेड। Okay, TS is a symbol period. So whenever symbol period is much higher than the delay spread and coherence bandwidth is much higher than the signal bandwidth, then and then flat fading occurs. Okay, now next is frequency selective feeding. तो frequency selective feeding क्या चीज़ है? तो हमने आगे देखा था कि a channel that is not a flat fading channel is called a frequency selective feeding. Okay, ये बहुत मतलब you can say that कॉम्प्लीमेंट्री डेफिनेशन जैसा है कि फ्लैट फेडिंग जो नहीं है, फ्लैट फेडिंग चैनल नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग है। ओके, इन
because different frequencies within the signal are attenuated differently by multipath reflected channel, okay, MRC. Okay, so that is called frequency selective fading. It occurs when the channel multipath delay spread is greater than the symbol period. अगर symbol duration TS अगर कम होता है तो obviously symbol will face a time dispersion, obviously, and like this channel will introduce ISI. Okay, channel will introduce ISI because response जो मिल रहा है वो impulse का वो delay हो जाएगा. ओके, क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा, डिलेड हो जाएगा, विच वॉज रिप्रेजेंटेड बाय एच ऑफ टी, जो आगे हम देखने वाले हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में. बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल इज वाइडर देन द चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एफ. एच ऑफ एफ क्या है? विच विल बी द ट्रांसफर फंक्शन. ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग की वजह से रिसीव्ड बेसबैंड सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ जाता है. अगर ये आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. क्लियर अबाउट दिस फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग. नाउ कैरेक्टराइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग. तो लाइक फ्लैट फीडिंग, अगर आप बोलोगे कि एस ऑफ टी इज द इनपुट सिग्नल ट्रांसमिटेड सिग्नल, एच ऑफ टी टाउ रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग, देन हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस? ओके, यहाँ पे हमारे पास है एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल विच वॉज रिप्रेजेंटेड बाय एच टी टाउ. जो सिग्नल हम भेज रहे हैं वो है एस ऑफ टी, और जो सिग्नल हमें एज अ आउटपुट मिल रहा है वो है आर ऑफ टी. एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है एस ऑफ टी इज वेरी मच लेस देन द विड्थ ऑफ द टी एस. Okay, S of t is very much less than the TS. Okay, एक एग्जांपल है हमारे पास कि अगर मैं ऐसा सिग्नल एज ए इनपुट ट्रांसमिट करना चाहता हूँ और ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव प्रोवाइड कर रहा है तो मुझे आउटपुट ऐसा मिलेगा, स्प्रेडिंग हो. ओके, समझ में आया? स्प्रेडेड सिग्नल मुझे मिलेगा. It causes distortion of the received baseband signal, okay, and ultimately it causes ISI, that is inter-symbol interference. मतलब कि symbol पूरा जो change हो जाएगा, okay, that is called inter-symbol interference. It selectively fades some of the frequency component कि जो ISI कहलाता है. Okay, so it's a frequency selective fading. Now our third type, actually you can't say that it's a third. Actually classification is quite different than first two. पहले दो है वो टाइम डिले स्प्रेड से हम कर रहे हैं, दूसरा है वो ये दो अभी जो हम देखने वाले हैं वो डिले स्प्रेड से कर रहे हैं. ठीक है, तो फास्ट फेडिंग क्या है? Fast fading occurs due to the Doppler spread. Okay, when ये कब होता है? तो when rate of change of channel characteristics is larger than the rate of change of transmitted signal. Okay, तब जाके आपको फास्ट फेडिंग मिलेगा. इसकी वजह से चैनल चेंज हो जाएगी ड्यूरिंग सिंबल पीरियड. सिंबल पीरियड जब चल रहा है उससे पहले ही हमारी चैनल पूरी चेंज हो जाएगी. रिपीटेडली द फीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो चेंज ड्यू टू दिस, एंड उसकी वजह से हम फेडिंग का कुछ पार्ट ओवरकम कर सकते हैं. ठीक है, फेडिंग ये कंट्रोलेबल फेडिंग है, मतलब यू कैन रिमूव सम ऑफ द पार्ट. In this, the channel changes during the symbol period. ये हमारा मेन कंसेप्ट है कि सिंबल पीरियड जब चल रहा है तभी हमारा चैनल चेंज हो जा रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फास्ट फेडिंग.
coherence time TC of the channel is smaller than the symbol period TS of transmitted signal. You can understand the concept of fast fading by assuming that you are moving with the respect to the TX and you are passing through the थ्रूज एंड द पिक्स ऑफ द फेडिंग चैनल। यहाँ पे क्या किया है कि रिसीवर को हम मूव कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं तो इस तरह से मूव कर रहे हैं, ऐसा फास्ट मूव कर रहे हैं ताकि जब कम्युनिकेशन चल रहा है वही दौरान हमारा जो चैनल थ्रू हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है वो चेंज हो जाएगी। मतलब कोहेरेंस टाइम बहुत ही कम रहेगा। कोहेरेंस टाइम जनरली रहता है कि चेंज ऑफ चैनल टाइम। ओके तो सिंबल अगर हमारा पीरियड ट्रांसमिट और रिसीवर सिंबल ट्रांसमिट रिसीव हो रहा है उससे पहले ही हमारा चैनल पूरा चेंज हो रहा है। सिंस यू आर मूविंग सो फास्ट दैट विद इन द सिंबल इंटरवल यू गो फ्रॉम द फेडेड पॉइंट टू द नॉन फेडेड पॉइंट। So within the symbol duration you get in and get out of the fed. The fading environment changes within the duration of the symbol. This is called fast fading. ओके समझ में आ गया आपको? एक सेटअप रहता है कि जहाँ पे ट्रांसमीटर रहता है और रिसीवर्स रहता है। ठीक है, तो रिसीवर को आप इतना फास्ट मूव कर रहे हो कि सबसे पहला सिग्नल जो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पूरा रिसीव हो उससे पहले ही पूरा चैनल चेंज हो जा रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से ISI जो इंट्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड फास्ट फेडिंग। क्लियर? फास्ट फेडिंग में और चीज़ क्या ध्यान रखनी है? कब जनरेट होता है वो? इट इज जनरेटेड व्हेन BS इज वेरी लेस देन BD। मतलब कि बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल इज वेरी स्मॉल देन द डॉपलर स्प्रेड एंड TS is greater than TC. TS is a symbol period and TC is a coherence band. Okay. Now our last type that is slow fading. Okay. तो slow fading क्या है? तो slow fading में जनरली क्या होता है? तो slow fading is generated when the rate of change of the channel characteristics is much smaller than the rate of change of transmitted signal. Here the channel may be assumed to be almost static over one or several reciprocal bandwidth intervals. In frequency domain this means that the Doppler spread of the much smaller than the bandwidth of the signal. Now there was a question raised maybe either with the respect to what happened in the between the frequency flat and frequency selective flat. ओके तो जनरली ये स्लो फेडिंग कब काम करता है? इट इज टोटली रिवर्स देन द फास्ट फेडिंग कि जब आप स्मॉल माइनरली बहुत रेट कम रखोगे रिसीवर के मूव का तो क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा सिग्नल रिसीव हो जाएगा, उसके बाद भी चैनल चेंज नहीं होती है। मतलब चैनल की अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आता है। ओके दैट इज कॉल्ड स्लो फेडिंग। दैट्स वाई दैट्स हाउ स्लो फेडिंग जनरेटेड। ओके इट्स जनरेटेड व्हेन BS इज मच ग्रेटर देन BD। okay whenever signal bandwidth is much greater than the Doppler spread and symbol period is very much smaller than the coherence bandwidth, at that time slow fading is generated. Okay, so here we have completed our 4 classifications of fading. Okay, if you have any query you can ask me anytime. Okay, so thank you for this lecture. Thank you.